Hello? Doctor. Perhaps you could pass around. Go ahead, Master. Valeu, velho. Tem uma linha de skip o chuquinho lá. Agora aí, peraí, vai que ele tem breakdown. Elas duas, viu? Maybe a última. Então, assim, que é certinho por xixi no armário, mano. Deixa eu ver também que eu quero. Yes, पे एडमिट करो एमसे करनो दहलाज एमस नियर सिर्फ आज की दो सुबह छी जल्दी एडमिट करना ना तो जमी की खत्म यो ने जो कहती है मिस दहलाज चोटी ये जब सोन तब का बादा ने दिमाग में दहलाज चोटी मैं ये स्कीम जो दी सिगरेट जान खत्म ऐसा छुए पर चाचा दोस्त से डर बदलते मैं असरस चाना सिगरेट What time is the fees? Like what age are they? Under all things. Daha çok kayda bileceğiz. Peki o segundo, que eu vou usar assim? Dulu waktu gak suka serot. Waktu gak serot. Turun jauh sih buat berangkat wani. Saya क्या भाग हो सकेगी बीमार? क्या? जहाँ उसे खबर क्या? यो से क्या नहीं सिगरेट? आप लाने थे उनके थम सिगरेट? ये शुरू सिगरेट चलाओ जी मैं ना शुरू सिगरेट का बहुत। ऐसा चाहिए जब मैं क्या से बिछाए सिगरेट ना सुचुक हमेशा आप उस बनाए बाइक थमस से सुबह पानी गरज बस के ये क्या गरज दफा कुछ ना तुझा जॉय नहीं चलो say no to drugs yes to life and no one cares about you more than your family. Thank you. My name is Sulaiman and today I am here to speak on the theme say no to drugs yes to sports. This slogan is more than just words. It's a choice between destruction and discipline, between addiction and ambition. Sadly, in many parts of India, especially Punjab, Manipur, Uttar Pradesh and parts of Jammu and Kashmir, drug addiction is a rising problem. Lakhs of young people are losing their future to harmful substances. Drugs may seem like a quick escape, but in reality, they destroy health, confidence and dreams. But there is a better path, and that path is sports. As Sachin Tendulkar wisely said, chase your dreams, but don't fight short. Say no to drugs and a strong, proud yes to sports. Thank you very much. Hindustan's love. जहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, आज यहाँ पे एक एनकॉर्ड होता है जहाँ पे हमारा एक जॉइंट एफर्ट है ड्रग पेडलिंग को खत्म करने का. उसमें सिविल डिपार्टमेंट्स आते हैं, उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट आता है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस आता है. पुलिस का रोल इसमें है कि अगर जब भी हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, अभी 4 दिन पहले हमने यहाँ पे चर्च का 1 kg पकड़ा. कितना? 1 kg अब चर्च एक बंदे से पकड़ा. ही इज करंटली इन डिटेंशन. FIR देना, बंदे को पकड़ना, इसका बैकवर्ड चैनल, इसने कहाँ से लाया है, उन सारे बंदों को उनको कानून का मजा चखाना, जहाँ इसको डिलीवर करना था उनको लेके आना और उनको कोर्ट में प्रेजेंट करके जेल में भेजना. जब ये सारे आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाते हैं, इससे जो करंट सप्लाई रूट होता है वो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस आते हैं. So one more thing. So peer pressure, family pressures, and broken families. We have also, seen it in our relatives or anywhere. How do you think that one can prevent broken families or even peer pressure for the students? See, it's a very complex question which you are asking. कि broken family को कैसे prevent करें? Broken family में जितने भी छोटे-छोटे मरहले उनके लाइफ में आते हैं, जितने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं. अगर कश्मीर में आप देखेंगे 10 साल पहले उतने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स नहीं थे जितने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आज की डेट में पुलिस के यहाँ रजिस्टर होते हैं. Sir, do you feel there's like a lack of cooperation from the general public of Kashmir on this topic regarding drug abuse? Do you think there's like a lack of communication or cooperation that we don't, help you guys?
कश्मीर में एक prevalent factor है that we are driven by emotions. ठीक है? We are, अगर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने drug awareness का प्रोग्राम किया, we do such kind of programs all across the valley. हर मोहल्ले में जाते हैं, हर बस्ती में जाते हैं, we conduct such kind of program. हमने देखा जब भी किसी को बोलते हैं ना बोलने के लिए, everybody is like a fireball, they speak a lot. ये करेंगे वो करेंगे, but when it is actually, when it comes to doing or walking the talk, you will always find less cooperation at that point of time. Right? Thank you. What is the behavior which is leading any person to consume a particular drug? What's the pathway? That if there's an individual, an educated boy, educated girl, why is he indulging in drug peddling, or why is he becoming the victim of substance abuse? Do you have any idea about that? You want to share with us? But kindly raise your hand and then answer. Yeah, please. Because they think it's a way to escape stress and other things. Excellent answer. Because it's a way that somebody is feeling stressed or has anxiety and he is finding it, he is using it as an escape route. Any other reason? Yeah, please. Adult modeling, acting like an adult. Okay, wonderful. Any other reason? One person at a time. Yeah, please. The household pressures or stress at home, because many times you have a surrounding in your house that makes your mind go from one thing to another. So that can also be a reason for such things. Wonderful answer. Beyond my expectations, people are also taking. That means broken families. If there are matrimonial issues inside the family, if family is broken in any manner, and there's a lot of stress, anxiety, disturbance on a child, and the child is forced, compelled to go for such experiments in his age. Any other reason? Any other reason? आप बच्चे नहीं हो, ना ही मन के कच्चे हो, आप बड़े बहादुर हो, काफी इंटेलिजेंट लोग हो. Any other participant? If we zero down the conversation which we have started, the basic thing is that an individual is manipulating or regulating his bodily requirement of pleasure and pain. Either a person is wants to escape from the pain and wants to get instant gratification in the form of pleasure in order to stimulate his body, like dopamine, GABA, etc., etc. There are many neurotransmitters which are operating inside our body. So we are actually manipulating with those neurotransmitters by consuming drugs. Okay? So tell me, how should you take safety measures to avoid that pathway of getting into drug trap? Any ideas from students? As an individual living in a society, what do you think could be the safety net for you in order to avoid or in order to save yourself from that trap जो आपने अभी डिस्कस किया? सवाल समझ में आया? Any answers? Spend time with your family. Spend time with your family. Wonderful answer. लेकिन कोई बता सकता है कि इससे क्या हो सकता है, कैसे सेफ्टी मिल सकती है? बैड कंपनी से दूर रहना. वेरी गुड. अब पहले सवाल पे मैं और कमेंट्स चाहूंगा. स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स. आपको क्या लगता है कि उससे आपका सेफ्टी नेट कैसे डेवलप होगा? ऑब्जर्वेशन. वंडरफुल आंसर. ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशनल फेज. यानी हमें अपने फैमिली मेंबर्स को ऑब्जर्व करते रहना कि उनमें कोई ऐसी ऑकवर्ड हैबिट तो डेवलप नहीं हुई है दैट ही नीड्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग और ही नीड्स ट्रीटमेंट. फॉर एग्जांपल, आप जो ही शाम को घर जाते हैं, हमारे बच्चे वो मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, फैमिली के साथ गुजारते हैं, और ऑफ अ सडन जो बंदा ड्रग कंज्यूम करना स्टार्ट करता है उसको तन्हाई पसंद होती है. वो जाके अपने रूम में बैठेगा, उस दिन फैमिली के साथ नहीं बैठेगा और कंटिन्यूसली उसको मजा आएगा इंडिविजुअली
इन्हें सॉलिट्यूड मैनर में अपने रूम में बैठने के लिए। दूसरी बात, ऑल ऑफ ए सडन उसके जो दोस्त थे वो चेंज हो गए। पहले वो आता था हादी के साथ, ठीक है, अगर हादी अ गुड कैरेक्टर एंड एनर्जेटिक गर्ल जिसने अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे वंडरफुली प्ले किया, जिस तरीके से उसको टीचर ने बोला था प्ले करने के लिए, जिस तरीके से उसको टीचर ने सिखाया था कि आपको यहाँ पे कौन सा रोल प्ले किया, शी हैज शोन ए ग्रेट रिस्पॉन्स एंड ए फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय हादी। तो ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इसके दोस्त चेंज हो। पहले इसके थे एग्जाम्पल 2-4 नाम आप जो भी जहन में आपके आएंगे वो इसके दोस्त थे, लेकिन जो ही इसने ड्रग एडिक्शन मतलब ड्रग एडिक्ट हो गया, ड्रग कंज्यूम करना स्टार्ट हो गया, ऑल ऑफ अ सडन इसका सोसाइटी में फ्रेंड सर्कल चेंज होता है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको अलग अलग से डिफरेंशिएट करना है, एक है पेडलर, ड्रग पेडलर, दूसरा है ड्रग कंज्यूमर। एक सेकंड, जो सब्सटेंस अब्यूज करता है वो पेशेंट होता है, उसको पनिशमेंट नहीं देना होता। जो ड्रग पेडलर है, जो बेचता है पैसे के लिए, पनिशमेंट उसको देनी होती है। अब अगर आपके नेबरहुड में कोई बच्चा है जो फॉर एग्जांपल चरस पीता है या हीरोइन करता है, उसके लिए सोल्यूशन ये नहीं है कि उसकी पिटाई करे, उसके लिए सोल्यूशन ये नहीं है कि उसको एक्सकम्युनिकेट करें, उसको सोसाइटी से बाहर फेंकें, उसके लिए ये सोल्यूशन नहीं है उसको हम गिल्ट फील करवाएं, उसके लिए सोल्यूशन है उसको डॉक्टर के पास लेके रिहैबिलिटेशन के लिए, क्योंकि ये बंदा जो है ये पेशेंट हो गया है। अब उसका माइंड उसका माइंड जो है बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको क्रेविंग डेवलप होती है, विथड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इस विक्टिम को हमें कहाँ पे लेके जाना है? रिहैबिलिटेशन सेंटर। उसको लेबल नहीं करना है, उसको टॉर्चर नहीं करना है, उसको गिल्ट फील नहीं करवाना है, उसकी पिटाई नहीं करनी है, क्योंकि पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए। उसको कहाँ लेके जाना है? डॉक्टर के पास। और रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे होते हैं? कश्मीर में 3 है। कितने जो पुलिस ने एस्टैब्लिश किए? एक है अनंतनाग में, दूसरा है श्रीनगर में, तीसरा है बारामूला में। जो अनंतनाग में है वहां पे है हमारी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम है डॉक्टर मुदस्सिरा, शी इज हैंडलिंग दैट। यहाँ पे है डॉक्टर मुजफ्फर जो उनको ट्रीट करते हैं जो पेशेंट होते हैं। अब वापस उसी सवाल पे आएंगे कि अगर हमने प्यूनिटिव प्रोविजंस है, हार्शर पनिशमेंट है, ड्रग पेडलर्स को देंगे, उनको लगता है कि इससे अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जो है उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस आ सकते हैं। इन्होंने जो नया एक क्वेश्चन रेज किया था, दैट्स बीन आंसर। अब आप बताओ क्या हो सकता है हार्शर पनिशमेंट, और हार्शर पनिशमेंट को कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? जब तक ना जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज होती है उनके साथ पब्लिक सपोर्ट में ना आ जाए। अब आप बताओगे कैसे? हमने बाहर एक ड्रग पेडलर को पकड़ा, उससे हमने चर्च पकड़ी। ये जो सारा वाकया है ये हुआ एक पब्लिक प्लेस पे, मार्केट में हुआ, लाइक हजरतगंज मार्केट में हुआ। वहां पे 10 बंदे थे जो पब्लिक के थे जिन्होंने ये एक्ट देखा। जब तक न वो गवाही देंगे, हाँ जी मेरे सामने SHO साहब आया, इस बंदे की तलाशी ली, उससे उन्होंने कुछ निकाला। सब कहते थे चरस है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता चरस था या नहीं था, लेकिन सुनने में आया कि क्या था, चरस था। इसकी गवाही पे जज साहब इसको पनिश करेगा था। यानी अगर 7 साल की सजा है ये तभी मिलेगी जब जनरल पब्लिक में 4, 5, 6 सच्चे गवाह कोर्ट में पेश हो जाए, जिनकी गवाही सुनने के बाद ही जज उसको प्रोनाउंस करेगा जजमेंट, यानी उसको हार्श पनिशमेंट मिलेगी। अगर पब्लिक ये सपोर्ट नहीं करेगी, जो शायद बहुत कम है अभी देखने में, हालांकि इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है, लेकिन और इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है कि आप जो देखते हो क्राइम होता है, जब तक न पब्लिक के बंदे, जब तक जनरल पब्लिक उसके खिलाफ आ जाए गवाही देने के लिए, तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप अगर आप इस तरीके से सोचें कि मेरे कॉन्टैक्ट्स खराब हो जाएंगे, मैं डरता हूँ, ठीक है, अगर हम ऐसी सोच रखने वाली सोसाइटी है, डू यू थिंक हमारा कोई जस्टिफाइड मैटर में जस्टिस मिल सकती है? नहीं मिलेगी ना। तो चेंज किसको होना है? सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। हमें ड्यूटी बाउंड बनना है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को हमें निभाना है, ताकि जो हमारा नेबरहुड में कोई बंदा है जिसका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है उसको जस्टिस मिलेगी। We'd like to request our Honorable Principal Ma'am, Honorable Chairman Sir, Honorable Saiwan Sir, to present a small token of gratitude and love to Asik Sir on this special occasion
for making our day beautiful, for marking this occasion, for creating awareness among all of us. So this small token of gift is from our side, sir. इन चारों का माइंड जो मैंने पढ़ा दैट इज वेरी क्रिटिकली वेरी एक्टिव, और इन्होंने जितने आंसर दिए, जितने फॉर एग्जांपल इन्होंने क्वेश्चन पूछे, इस एज में कोई नहीं पूछता। बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो पुलिस की तरफ से या जो हमारे एरिया पुलिस है जिसकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, और मुझे लगता है कि ये एक स्टेप जो उन्होंने उठाया है ये अप्रिशिएबल होना चाहिए कि आज उन्होंने आपको बताया, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको सही और गलत की चीज़ नहीं पता चलती, इस एज में उनको नहीं पता चलता। और ये फ़र्ज़ है हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, हमारी सोसाइटी का कि हम उनको बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मुझे लगता है कि सभी स्कूलों में इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए। खाली हम कहें कि हम साइंस पढ़ा लेंगे, मैथ पढ़ा लेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, वो तो पढ़ाना है, लेकिन हफ्ते में एक बार हमें इस किस्म की क्लासेस रखनी चाहिए हर स्कूल में, जिसमें बच्चों को ड्रग्स के बारे में और बुरी हैबिट्स के बारे में बताया जाए। 3 चीज़ें हैं ड्रग जिस पे ये बेस बनती है, जो इसकी जिम्मेवारी जिनकी है। 1 इज़ पेरेंट्स, 2nd इज़ स्कूल, 3rd इज़ अवर लॉ एजेंसीज। तो पेरेंट्स का इसमें मेन रोल है, क्योंकि मैं बड़े वसूख से कहना चाहूँगा कि किसी स्कूल में आके बच्चा स्कूल के अंदर तो कभी ड्रग नहीं देता है, क्योंकि यहाँ एक किस्म की चेकिंग होती है स्कूल में, उनके बैग को भी चेक किया जाता है, दूसरी चीज़ें। तो यहाँ पे ऐसा कोई रोल ही नहीं है किसी स्कूल में कि स्कूल के अंदर बच्चा दे रहा है। अगर किसी बच्चे ने दिया होगा तो उस दिन स्कूल नहीं आएगा। वो जो चीज़ होती है, या तो वो जिस वक्त घर जाता है, फिर बाहर अगर घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलता है, उस वक्त ये चीज़ होगी। तो सबसे पहला जो पता चलना चाहिए वो पेरेंट्स को पता चलना चाहिए, और पता ताकि वहाँ उसको पता चले और वो बच्चों को रोके और बच्चों को कंट्रोल करें। और आजकल तो वैसे भी अगर हम कोई सख्ती करते हैं स्कूल में तो मेरे ख्याल पेरेंट्स भी बर्दाश्त नहीं करता है, फिर हमारी लॉ एजेंसियाँ भी आ जाती हैं कि आपने इस बच्चे के साथ थोड़ा सा हार्श किया है। तो इसलिए लिमिटेड रोल है स्कूल का, बट स्कूल का रोल है काउंसलिंग। पेरेंट के रोल के बाद स्कूल का रोल आता है कि वो काउंसलिंग करें बच्चों को कि क्या चीज़ गलत हो रही है सोसाइटी में, और इस चीज़ से आपका नुकसान क्या हो। मुझे ज़रा कोई बच्चा यहाँ बताए कि जिस पूरे वर्ल्ड में कि कोई ऐसा बंदा था जो बहुत ड्रग लेता था और वो बहुत ऊंचे ओहदे में चला गया। मुझे नहीं लगता कोई ड्रग वाला IAS अफसर बन गया होगा, केस अफसर बन गया होगा, या कोई ब्यूरोक्रेट बड़ा बन गया होगा, या किसी चीफ मिनिस्टर बन गया होगा। ऐसा कभी भी नहीं। आप जब भी देखेंगे जो ड्रग्स लोग लेते हैं वो ज़िंदगी में एक नाकाम लोग होते हैं, वो एक बुज़दिल लोग होते हैं, और कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन शायद उनको वक्त पे रोका नहीं गया, शायद उनको वक्त पे काउंसलिंग नहीं की गई, और जिस तरीके से भी हमारे DSP साहब ने कहा कि हम पुलिस काम करती है अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। पुलिस तब काम करेगी जब उनके पास विटनेसेस होंगी, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, और लेकिन वो चीज़ हम अवॉइड करते हैं हमेशा कि नहीं जी मुझे क्यों जानना है। वो अगर हम अवॉइड कर रहे हैं तो हम अपनी सोसाइटी को, मैं अपने आप को खुद ख़राब कर रहा हूँ। ये बुरी चीज़ के लिए गवाही अगर हमें रोकने के लिए गवाही देनी चाहिए तो देनी चाहिए, क्योंकि हमारा उसके बाद क्या होता है कि अगर एक वीक केस पुलिस का है तो वो आसानी से हमारे जो कोर्ट्स हैं उनसे छूट जाता है। तो फिर दूसरे लोग जो बेच रहे होते हैं वो कहते हैं क्या है फ़र्क, चलिए 2 महीने रहा अंदर, ऐसा वैसा हो गया, या जो भी वकील उसने अच्छा कर दिया, छूट गया। तो उसके लिए वो इबरतनाक सज़ा नहीं बनती, क्योंकि हमारा लॉ बहुत वीक है। अगर नहीं है, यही लॉ तो हमारे मिडिल ईस्ट में भी है, यही लॉ हमारे पास भी है, यही लॉ दिल्ली में है कि सीट बेल्ट के बगैर कोई गाड़ी में बैठता नहीं है, और कश्मीर में सीट बेल्ट बांध के कोई नहीं बैठता, बहुत कम लोग बैठते। वहाँ इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ है, यहाँ नहीं है। उसके कई कोई रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं लॉ में,
میں نے نہیں, ہم نے بہت کم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ اس قسم کی وبا بہت کم ہوگی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ٹوٹل نہیں ہوگی. کیوں کہ وہاں پہ لا بہت سخت ہے اور ان پہ عمل کیا جاتا ہے. اور دوسرا ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنے مذہب, جو ہمارا مذہب چاہے مسلمان ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ایسے کہ ہم ان سے دور ہو رہے ہیں دن میں. اگر آپ مذہب میں جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں جی وہ جی میں فرسٹریشن ہے, پرابلم ہے, ٹینس ہو گیا ہوں میں, یہ ہے. تو کیا اس ہمارے ہر مذہب میں اس کا رائے تو دیا گیا کہ اگر آپ کے پرابلم آ رہی ہے آپ اٹھیے اور نفل پڑھ لیجیے, آپ کی پرابلم, آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے. کیا اس پہ آپ کبھی عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لیکن لاسٹ میں میری یہی گزارش ہوگی, میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے اس ایریا کے جو ہماری پولیس ہے کہ ایسے پروگرام ہمارے اس ایریا میں بہت سارے اسکولس ہیں, بہت بڑے بڑے اسکول ہیں, وہاں بھی کریں. اور یہاں بھی ہم ان کو یقین دلاتے ہیں. آج کے بعد کی جو نیا سیشن ہمارا ہوگا اس میں ہفتے میں ہم ایک پیریڈ, میں ریکویسٹ کروں گا پرنسپل میم کو کہ وہ جس میں پورے اسکول کو جمع کر کے ایسی ڈبیٹ کی جائے, ایسے طریقے بتائے جائیں جن سے یہ چیزیں دور ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی نالی عاشق صاحب کو اس بارے میں کاؤنسلنگ کی ہے, از اے بیسٹ کاؤنسلر. ہم چاہیں گے کہ ان کو دعوت بھی دی جائے اور یہ بیچ بیچ میں ہمارے اسکول آئیں, ایک فار سوشل کاز, تاکہ ہم اپنے کم سے کم دیکھیں. میں اپنے اسکول سے تو شروعات کر سکتا ہوں نا, اینڈ آئی ایم آلسو پریزیڈنٹ آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن. میں وہاں بھی کوشش کروں گا کہ ہمارے ان اسکولوں میں ہم کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک پیریڈ اسی چیزوں پہ کیا جائے. تھینک یو. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم تو کوئی ابھی بول رہا تھا, یہی ہوتا ہے. اگر اس دمو نا پنن بچن یہ تربیت سے سگریٹ اتھس کت رٹن زٹھس تھی, یہ کتنی بڑی غلطی ہے. یہ کتنا شرمناک شرمسار بات ہے جو باہر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. پچھلی بار میں یہاں آیا تھا, ٹریفک پہ پروگرام تھا, تو میں نے تب ایک مثال دی تھی کہ اگر روز پیوان بچہ لڑکا سون جوان ٹین ایج جس کو ہم بولیں گے, یا 25 بلو 25 ایئرس آف ایج, وہ جوان ہی ہوتا ہے, تو یم سات سو روز مز گاڑی چھن چلاوان, سائڈ سے اکھ بزرگ پکان, یہ چھن کران ایژا چھن امس عقل سے پکا لوگ تتس گژھِ مہ گژھن یہ یہ چلتا ہے, یہ وچھان یہ کوتا آپ کوتا دور گژھِ میانہِ سپیڈ سۭتۍ. ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں, اور یہ مٲنِتھ چھِنہ آسان وٕچھان تَتھ چھِ تٔتھۍ منٛز گژھان خوش. اس چیز کو ہم گلوریفائی نہیں کرنا ہے, ہمیں اس چیز پہ ہمیں کام کرنا ہے. ہم آج کیا کر رہے ہیں, بچے کو اسکول میں چھوڑا, یہ تراؤ سورے کٔمِس پٮ۪ٹھ أسۍ ٹیچرس پٮ۪ٹھ. أسۍ دِوان ابھی میم بات کر رہے تھے ہم اوپر کہ پیرنٹس آر پیئنگ, وہ سوچ رہے ہیں کہ وَل اَسہِ دیُت رۄپیَس 5,000-6,000 رۄپیہِ أمِس, بیٚیہِ چھِس 2,000 گاڑِ کِراے, یِم کیٛازِ ہیٚچھناوَنس نہٕ أتی. میرے پاس کئی بار پیرنٹس آتے ہیں, سٲنۍ بچہِ حظ چھِ چٮ۪وان چرس, یِم چھِ کران ڈرگس, یِم حظ چھِنہٕ, وہ کیا کرو, یِم رٔٹۍتو یِم تھٲیتو بنٛد. میں بولا ٹھیک ہے, میرا کام ہے بند کرنا. جب ہم ان کو تھانے میں لاتے ہیں نا, ان کے ساتھ 10 منٹ گژھنا, ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے ہوتے ہیں, وہ وہی ماں پھر سے آتی ہے, امس حظ اوٚن مےٚ جوٗس. بس ٹھیک چیز جوٗس گوٚو اصل, میں ہوتا ہوں. ہم اس کا پریونٹیو ڈیٹینشن کے لیے ایک ڈاکٹ بناتے ہیں, ایک ڈاکومنٹ بناتے ہیں کہ ہم اس کو 5-6 دن کے لیے جیل بھیجیں گے, امس گژھِ تتہِ کنٹرول تھوڑا, دوران ہُنٛد پتہٕ سوزون رِہاب. یُتھُے أسۍ ڈاکٹ چھِ بناوان, أمِس ماجہِ یا مٲلِس چھِ لگان پتہ, یہ الٹا ہمیں پہ چڑھتے ہیں, نہ حظ اور کوٚت سوٗزِو. یہ چھِ سُہ اولاد دود. البتہ اَسہِ پَزِ تیُتُے یہِ دود تھاوُن, یہ پیرنٹس کے لیے بات ہے اور یہ ہمارے ٹیچرس کے لیے بات ہے, اور میرے لیے بھی. اَسہِ پَزِ تیُتُے اولاد دود تھاوُن یوٗتاہ شُرۍ, ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ سون بچہِ گژھِ خراب. ابھی ایک ماں کا رول کر رہی تھی, یہ ٲس تُلان تہٕ دِوان أمِس حاجی صٲبس پونٛسہٕ. یہ پریکٹیکلی باہر سوسائٹی میں ہو رہا ہے. أسۍ کیٛازِ دِمو أمِس پونٛسہٕ, أمِس کَتھ کِتھ چھِ, کتابیں تو اسکول میں دے رہے ہیں اس کو, آج کل تو نوٹ بکس بھی اندر ہی دے رہے ہیں, اسٹیشنری آئٹم سارا اندر ہے, ایکٹیویٹی کا سارا مٹیریل اندر ہے. ہمیں کس لیے اس کو پیسے دینے ہیں شام کو؟ اگر اس کی ہم ضرورت انوس برونٹر کیا چیز کیوں یہ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے, نوکر بن کے اس کے ساتھ پیش آ جاؤ. مگر
दिवान पोंस और ये उन्हीं पैसों से क्या कर रहा है, सबसे पहला स्टेप जो है ड्रग्स की ओर जो हमें ले रहा है हमारे बच्चों को, वो है 5 रुपए की सिगरेट। जो सारे को लो ग्रेड सिगरेट में 5 रुपए, ठीक है ना। और वो 5 रुपए की सिगरेट ड्रग्स की शुरुआत होती है। और सिगरेट के बाद क्या होता है, बच्ची बड़ी स्कूल पर ये इसको में पढ़ रहा है, ये IDPS में पढ़ रहा है या GPS में पढ़ रहा है, चंदस रुपीस बचने सुबह क्या अगर ये थाउन छोरी पचना मोज न छोरी कितने सोर ने ये 1000 रुपए 2000 रुपए जब जेब में रखता है शायद हाई प्रोफाइल पेरेंट्स दोस्त मिला, जैसे इस ड्रामा में आपने दिखाया। इनसे ये दोस्त न मिला, इनसे मना चलो आज मैंने कुछ और दिखाया नेट पे, इसमें हम पफस तो आज निमो इस पाउडर से आमसन और मस्त हो जाता है इंसान। उसको 500 में मिलता है, 1000 में मिलता है, आधा ग्राम 1 ग्राम। इनसे आसान 4 गटन 3 गटन खतर सेट है, ठीक है। इसमें आसान लॉक टीन एज में ज़्यादा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये। और अगर न इमिस मोल माज ये फैसिलिटी आसा जिसमें से गलत तरीके से आसान इमिस प्रोवाइड कर इमिस पोंस चंदस थमित यह क्या है थी नेबर कहीं चोरी तो टीनेज कर ही नहीं सकता। ये सुबह ने स्कूल दोस्त स्कूल में तोड़ तन वो थ्रू ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी स्कूल बस थ्रू गाड़ी शिकायत कर सुबह। हम एज अ पेरेंट्स, हम भी पेरेंट्स हैं, तो हमें ये गलती हो रही है। अच्छा, दूसरी बात है कि शाम सवार बच्चे फोन इस पर लगी पानी कमरस में बिहित वो निंदर कर समझ पेरेंट्स पाने मस्ती मज गो दोस्त जॉब, उसके बाद खाना पकाना, पत गो नबर गन चक्रस, पत गो वॉक, उधर से आ रहे हैं पत मोल मोज पान जिसको हम ब्रोकन फैमिली पत पान बहस कर बहस चलता है पेरेंट्स के बीच। निज आसान कोर आसान पथरी, मैं दोनों की जेंडर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये अब फैल रहा है, फेमिनाइन सेक्ट में भी ये तेजी से फैल रहा है। तो इसमें सिर्फ हमारे लड़के ही नहीं है, बॉयज नहीं इन्वॉल्व, अब गर्ल्स भी इन्वॉल्व हो रही है। शाम से ना बच्चा जब गंट तक कहीं से तो पानस नहीं, वो क्या कर रहा है ऊपर तम चसन चुमथन किया नत क्या सिगरेट चवा सो। टीनेज में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जब एक सिगरेट ले रही है अंदर जब निकोटीन ये 2-3 घंटा छप कर देवा है कि निमिषा पात्र पे क्या कर रहा है। और हम एज अ पेरेंट्स इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तब सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी कि इस रोज़ों पनिस मोलिस माज निश, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स नहीं है, तम बोझानी का आप बच्चे हमारे मोलिस माज द्रोम पे भी शामस जरूरी चुना अलग कमरस में बेहुन। आपको फोन यूज करना है, माँ बाप के सामने साइड में यूज करो। कौन आपको प्राइवेसी स्क्रीन लगा लो, उसमें कौन देख रहा है आप क्या कर रहे हो। अलबत्ता जो आप ये ड्रग्स, पहले हम ड्रग्स की बात करें। ड्रग्स जब आप ले रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने बोला सिगरेट से स्टार्ट होता है, फिर ये जर्स पे पहुंचता है, उसके बाद ये ब्राउन शुगर पे पहुंचता है, इसके बाद ये हेरोइन पे पहुंचता है, लास्ट पे ये पूरा लंग्स और लिवर पे पहुंच रहा है। 55 दिन 5 जू अपने टीचर्स की कदर करना, पेरेंट्स का मानना, पेरेंट्स से अच्छे से सलीके से बात करना, फ्रेंड सर्कल को अच्छे से चुनना, और बाहर जाके शाम को सुबह पे पर चुन बिहुन बाकी वस्सलाम, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, थैंक यू so much, sir, for your inspiring words and words of wisdom. Indeed, right choices, right people and right environment. There is no gentle bias in creating a peaceful nation. Now is the time I'd like to invite our Honorable Principal to come over the dais and share some few golden words for this awareness occasion. All the children, we are gathered here today for this, it's a very threatening call to the society, for the whole society, like why this is happening in our society and how we can prevent ourselves and how we can aware to others also. When we are very young, people, they get attracted to all these addictions, and it comes from sometimes from the surrounding. When you saw people, they get addicted, as sir has also quoted in the speech, with the smoking. Smoking is is a normal thing actually. Everywhere it is available, and nobody is even thinking it's a bad thing. It's a normal thing actually in the society, right? And you also get attracted towards that. But what should be your act in that part? You should say no. It's not only writing on the board only.
say no to drugs, and this will end here only. Okay, we are doing it, the awareness program. Sir also said so many things, and I also share many things, our experience also, and by the evening time, you will say it was just a program. No, it is not just a program for today. It will go on and on. Not for today only. This will be from today. We have to take a first step. Say no to all the bad things. Maybe it's an abusive language, maybe it's a drugs, maybe anything other thing, whatever is coming in your mind. So we have to say no to negativity, and we have to take the positive things. And what are the positive things? We have to go for yoga, we have to go for a walk, we have to have inculcate good reading habits, that we can start. When you will read good books, then your mind will occupy that space and you will not think the negative thoughts. Is it? Because you are a young child. Maybe you cannot do so many big things in your life at this stage. It's a very tender age. But you can do a small step. And small step leads to big steps. So today we have to take a small step, at least at this age, that we have to say no to negativity. Maybe it's a disrespect to your parents, maybe you are not listening to your senior ones, maybe your teachers. So this is also a very serious thing. It's not only about the drugs. We are here to guide you, we are here to counsel you, your parents are there at home, so everybody is there in the society. So we have to take care of a very small thing also when we are doing act. Maybe an act is a small thing, but we have to take a very serious note. How, what, when, what we have to do. If you will understand the sensitivity of these small things, then you will not get trapped in any big thing. मुझे लगता है like everybody has to take a first step today, and tomorrow we will achieve that success, and together we achieve. Okay? Thank you so much.